Hello, everyone. I hope you all are doing well. So, today we have a very special person with us, Mr. Abhishek Singh Soni. He is also my mentor because he's also my alumni, right? He's my senior. So, we have a good bond as well, right? So, this podcast will be great because he is a blockchain developer and currently he's also building Miri right? Talking about his experience, he has actually worked with multiple startups dealing in the blockchain industry specifically. So I believe this podcast will be a gem for those people who are actually looking forward to have a career in the blockchain industry specifically. Right. So we won't waste much of the time now, and we will just directly jump into the podcast. So, sir, I would just like to know more about your story specifically, and a little bit elaboration about Miri. Growth, consistency, idea, reality. It all begins at one point. Here. Want to know how the industry works or how to build yourself? Learn from experienced people from the industry. Subscribe to know more. Firstly, thank you so much for inviting me for this podcast. And definitely, so basically, how I started the blockchain development, I will come to this as well. But before it, right now, I'm a co founder of Mary Skill platform, and we are helping college students to get the right experience of any job profile through internship simulations. So that we are offering on Mary Skill platform, and all these we have number of profiles which are very famous, which are very actively people are looking into those spaces. So we have number of profiles and we have partnered with number of companies as well. So definitely this can be something that all your audience and people can check out if they are looking for internships Right. experience. Now coming to my story, so basically like as you are in Gautam Buddha University, right, and you're my junior, so I've completed my bachelor's in technology from GBU in 2022. And in my college days, I was a very average kid. I was not very much aware about blockchain development. But if I tell you honestly, so in my first second year, I was into trading cryptocurrencies and all, and I got to know about Bitcoin and Ethereum through my uncle, जिन्होंने एक्चुअली बहुत पहले इन्वेस्ट करा था बिटकॉइन और इथेरियम और बाकी वर्चुअल करेंसीज में. So he told me about कि you can check what is Bitcoin, what is Ethereum. और मैंने चेक करा, then I convinced my parents to put some money into Bitcoin, Ethereum and all these cryptocurrencies. So well, during that time I was in Kota actually. This what I'm telling you, this is from 2017. I was in Kota preparing for JEE Mains, और वहाँ पे I was convincing my friends to invest in cryptocurrencies in my Cryptocurrency. hostel. एंड ड्यूरिंग 2017 इट वाज अ टाइम ऑफ बुल रन. तो वहां पे उस टाइम पे बिटकॉइन वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट $4,000 टू $20,000. और मैंने जो कुछ पैसे लगाए थे वो सारे मल्टीपल्स हो गए, मतलब 4-5x हो गए. बट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस साइकिल कि हाउ द इंटायर ब्लॉकचेन और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी साइकिल वर्क्स. जितने भी पैसे लगाए थे फिर वो धीरे धीरे करके सब जीरो हो गया, क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द मार्केट कि मार्केट वर्क्स इन अ साइकिल, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. And after that, after completing my preparation from Kota, then I joined GBU. और GBU आकर के in first second year I was not aware about कि if I'm going to be a blockchain developer. But हाँ, पहले मैंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ा हुआ था, और जब इन्वेस्ट करा था तो बहुत इंटरेस्ट लेकर के मैंने चीजों को समझा था कि चीजें काम कैसे करती हैं, होता क्या है एक्चुअली, ये टेक्नोलॉजी कर क्या रही है और इसका स्कोप क्या है आने वाले टाइम में. तो उस टाइम में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, पर मैंने उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा कभी प्रैक्टिकली, कभी कुछ कोड नहीं करा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक. और बाकी जैसे बाकी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था कॉलेज में. एंड इन माय फोर्थ ईयर व्हेन ऑल माय फ्रेंड्स दे स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर नंबर ऑफ कंपनीज, तब मेरे को समझ में आया यार कि कुछ तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि पहली जॉब चाहिए, राइट. और एज यू नो इन आवर कॉलेज during that time average package was almost 3 to 4 lakhs. Or companies be TCS, Accenture, Wipro, all of these sort of companies, you can apply for these companies जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है. तो तब मेरे को पता था कि यार ये 3-4 लाख की जॉब में तो नहीं जाना है, कुछ तो मतलब थोड़ा सा तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि 3-4 लाख में चला गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा एक करियर जंप में, राइट. देन one day I was just reading your story platform, और वहां पे I got to know about one startup Listo.
कि वो एक्टिवली हायर कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत रिसेंटली फंड रेज करा था एंड I messaged their manager कि if you're looking for a blockchain developer then I can be the right person and मैंने मैसेज करा, उनका रिप्लाई आ गया कि ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर अ ब्लॉकचेन डेवलपर, मे बी यू कैन गिव इंटरव्यू। और उन्होंने एक इंटरव्यू प्लान करा, बट इंटरव्यू उन्होंने 3-4 दिन बाद ही प्लान कर दिया और मैंने तब तक कोई डेवलपमेंट सीखा नहीं था, तो आई टुक सम टाइम 1-2 हफ्ते का एंड सीखा पूरा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होता क्या है। मेरे को पहले आइडिया था, कंपनीज के बारे में आइडिया था, करेंसीज के बारे में आइडिया था, क्या डेवलपमेंट चल रहा है इस इंडस्ट्री में, वो सारी चीजें पता थी, बट प्रैक्टिकली मैंने कभी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाया था। डी एप्स कह लो या फिर टोकन्स कह लो या फिर ब्लॉकचेन कह लो, तो कभी भी उन पे प्रैक्टिकली काम नहीं करा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब सीखना पड़ेगा इंटरव्यू में जाने से पहले, क्योंकि पक्का वहां पे तो कोड करने को बोला जाएगा, राइट। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इन 2022 और 2022 तब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं यूडेमी पे गया एंड आई परचेज्ड फ्यू कोर्सेज और वहां पे मैंने पूरा 4-5 दिन में पूरा इथेरियम पे सॉलिडिटी लैंग्वेज यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिखते हैं वो सारी चीजें सीखी और फिर इंटरव्यू दिया और लकली मैं सेलेक्ट हो गया एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। और फिर जब जॉब में गया वहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, पता चला कि क्या एक्चुअली क्या इंडस्ट्री में हो रहा है और कितना आगे क्या ग्रोथ है ब्लॉकचेन की आने वाले टाइम में। तो या then after that I joined few other companies as a blockchain lead and in my last company which was Ruba Finance, so I was tech lead there as a smart contract lead, and we created a tokenization platform where you can tokenize real world assets. It can be real estate properties, gold and all of these things. So yeah. Got it. And that's an interesting journey as well, because I totally understand that how, the environment here, it is in GBU, right? And Right. like it is very challenging, honestly. But we won't go in depth about it. So let's just understand first of all that what is blockchain, right? So that the students can get an overview that what actually blockchain is, right? So yeah, what's your take on this? Yeah. So I feel blockchain again, like when we talk about blockchain, right? लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कुछ तो बहुत out of the box है, मतलब कुछ ऐसा है जो समझने में बहुत टाइम लगेगा और people are very skeptical about blockchain development. Yeah. They don't go for blockchain development, right? अगर तुम अपने कॉलेज में देखोगे अभी तो तुमको बहुत ज्यादा blockchain developers नहीं मिलेंगे. People are learning AI, अब लोग AI के पीछे जा रहे हैं, data analytics के पीछे जा रहे हैं और वेब डेवलपमेंट तो हमेशा आपको मिलेगा, बट ब्लॉकचेन डेवलपर ढूंढना इज वेरी रेयर आज के टाइम में। मतलब तब के टाइम में तो बहुत ज्यादा था, आज भी इट्स वेरी टफ टू फाइंड अ गुड ब्लॉकचेन डेवलपर। तो एज यू नो, अगर ब्लॉकचेन डेवलपर ढूंढना इतना टफ है तो अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलेगी तो यू कैन इजीली क्रैक। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इज, सो इन सिंपल वर्ड्स आई विल से कि ब्लॉकचेन इज अ डेटाबेस, नथिंग एल्स। ब्लॉकचेन को अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में रखा जाए तो ब्लॉकचेन और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ डेटाबेस जहां पे देयर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। और ब्लॉक्स मतलब आप ऐसे समझ लो डब्बा और कुछ नहीं, राइट। और बॉक्सेस के अंदर व्हाट यू स्टोर, बॉक्सेस के अंदर यू स्टोर सम मे बी फाइल्स, डेटा एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, राइट। तो व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन इज, ब्लॉकचेन इज अ कनेक्टेड, basically it's a blockchain. Basically blockchain word is made up of two words, block and chain, right? Block is basically dabba and chain is all these blocks are interconnected with each other, and inside these blocks you can store transactions. Or this is what blockchain is in simple words. Blockchain is a database and all these blocks can contain some data inside it and which are interconnected with each other. Yeah. All right, got it. So, like any example that you would like to quote to explain the application of blockchain? Yeah, definitely. So, but yeah, one thing I'm missing here. So basically, blockchain again, like when you talk about blockchain, right? Then there is something which is very important to talk about is decentralization. ठीक है, अगर आप ब्लॉकचेन की कहीं भी बात कर रहे हो ना तो डिसेंट्रलाइजेशन इज समथिंग, अगर ब्लॉकचेन है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हर जगह मिलेगा कि कोई भी ब्लॉकचेन है इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। जितनी भी पब्लिक ब्लॉकचेन है आज के टाइम पे, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ऑल दीज ब्लॉकचेन्स आर पब्लिक ब्लॉकचेन्स एंड ऑल दीज ब्लॉकचेन्स आर डिसेंट्रलाइज्ड। बाय डिसेंट्रलाइज्ड आई मीन कि no one is actually controlling these blockchains. If I talk about these platforms like Facebook, Instagram, YouTube, right? अगर आपका अकाउंट है तो कोई भी आपका अकाउंट एक दिन में कभी भी बंद कर सकता है,
राइट? वो कंपनी आपका अकाउंट आज ब्लॉक कर सकती है, वो कंपनी आपका अकाउंट मे बी जो भी आपका डेटा है वो सारा डिलीट करा जा सकता है। बट इफ आई टॉक अबाउट ब्लॉकचेन इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय एनी कंपनी, या फिर कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो उसको कंट्रोल कर रही है कि वहां पे आपने कोई डेटा रखा है तो वो कल को कोई और बंदा गायब कर देगा, ऐसा ओके। कुछ भी नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एप्लीकेशन पार्ट, तो यार जो सबसे मतलब जो सबसे मेन एप्लीकेशन है विच इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो जो ब्लॉकचेन निकल के आया ना, सो ब्लॉकचेन केम इनटू पिक्चर इन 2008 जब बिटकॉइन आया मार्केट में। और बिटकॉइन बनाने के पीछे देयर इज वन गाय, उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया, उसका व्हाइट पेपर पब्लिश करा उन्होंने 2008 में। और आप मानोगे नहीं, आज भी लोगों को पता नहीं है कि हु इज सतोशी नाकामोटो। मतलब जो बिटकॉइन का इन्वेंटर है, आज तक किसी को पता नहीं कि हु इज एक्चुअली बिटकॉइन बनाने वाला बंदा कौन है। उस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी आज तक छुपा के रखी है। वो अभी भी जिंदा है नहीं है किसी को नहीं पता। एक सतोशी नाकामोटो एक ग्रुप था या फिर एक इंसान का नाम था, कुछ भी नहीं पता। एक एनोनिमस मेल से एक मेल आया जहां पे उसने एक बंदे ने वेबसाइट बनाई थी bitcoin.org, और वहां पे उसने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर डाला हुआ था। व्हाइट पेपर अगर मैं समझाऊं तो व्हाइट पेपर इज यू कैन से इट्स अ रिसर्च पेपर, या फिर इट्स जस्ट अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली बिटकॉइन इज एंड हाउ इट वर्क्स। तो आपको अगर बिटकॉइन के बारे में कुछ पढ़ना है, यू कैन गूगल बिटकॉइन व्हाइट पेपर और आपको इजीली मिल जाएगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट अराउंड 26-28 पेजेस का। तो 2008 में उन्होंने वो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश करा। फिर 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, और उन्होंने जो बिटकॉइन लॉन्च करा था ना, उनका मेन पर्पस था कि बिटकॉइन को लोग एज अ बेसिकली यूज करें ताकि सो दैट पीपल कैन ट्रांसफर वैल्यू। राइट? आज के टाइम पे हम जो करेंसी यूज करते हैं, इंडियन करेंसी यूज करते हैं या जो भी यूज करते हैं, राइट, डिफरेंट कंट्रीज में, व्हाई वी यूज इट सो दैट वी कैन ट्रांसफर वैल्यू। राइट? अगर मुझको आपसे कुछ खरीदना है या फिर कोई वैल्यू का ट्रेड करना है तो आई विल यूज आवर करेंसी। राइट? तो जो बिटकॉइन बंदा बनाया था, उसने उसका मेन पर्पस ये था कि ये जो करेंसी है हमारी, जो हर कंट्रीज में डिफरेंट है, उसको हम रिप्लेस करके बिटकॉइन यूज करें, और बिटकॉइन को एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या फिर वैल्यू ट्रांसफर के लिए हम यूज कर सकें। बट राइट नाउ टुडे पीपल आर नॉट यूजिंग बिटकॉइन फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, पीपल आर एक्चुअली स्टोरिंग बिटकॉइन। लोग आज के टाइम पे बिटकॉइन को एज अ एसेट क्लास देख रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कॉलिंग इट एज अ डिजिटल गोल्ड। राइट? आज के टाइम पे यू डोंट यूज गोल्ड टू ट्रेड। आपको अगर मेरे से कुछ लेना है या मुझे आपसे लेना है तो मैं आपको गोल्ड नहीं दूंगा। राइट? बट वही जो सेम पर्पस बंदे ने जिसने बिटकॉइन बनाया था, उसका पर्पस यही था सो दैट पीपल कैन ट्रांसफर वैल्यू। बट आज वो नहीं हो रहा है। पीपल आर ट्रीटिंग बिटकॉइन एज एन एसेट, एंड एवरीवन इज स्टोरिंग बिटकॉइन ताकि उसको आगे जा करके मे बी दे कैन सेल हायर प्राइस पे। और अगर इन केस समडे यूएस का यूएस डॉलर कोलैप्स हुआ तो बिटकॉइन कैन रिप्लेस यूएस डॉलर्स एज वेल। तो अभी लोग उसको वैसे देख रहे हैं, बट जो इन्वेंटर था उसने कुछ और सोच के बनाया और अभी यूज किसी और तरीके से हो रहा है। बट इफ आई कम टू द एप्लीकेशन पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यही है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिसके पीछे सब कुछ बनाया गया है। अंडरस्टूड। ऐसा भी तो है ना कि देखो, देर इज अ सर्टेन प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटेड विद द करेंसी, राइट? मतलब करेंसी कांट बी फ्लक्चुएटिंग, राइट? मतलब फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, राइट। राइट? सेंट्रलाइज मतलब कि जो कि एक स्टैंडर्ड है, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज इन द रियल सेंस। मतलब करेंसी स्टैंडर्डाइज, राइट? मतलब इंडियन रुपीज का कुछ वैल्यू है दैट इज स्टैंडर्डाइज, राइट? डॉलर का कुछ वैल्यू दैट इज स्टैंडर्डाइज, राइट? बट करेक्ट। crypto is something that doesn't have a standard value, right? It is always fluctuating. So या the point about treating Bitcoin as a currency wala, to it is not actually fulfilling the criteria that is meant to be fulfilled for being a currency, ओके right? या सो बेसिकली, बट अगेन आप इसको ऐसे देख रहे हो, जब आप इसको आप इसको इक्वेट कर रहे हो या फिर आप इसको देख रहे हो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, राइट? अगर आप बिटकॉइन को और उसको अगर आप देखोगे कि कितना बिटकॉइन आप खरीद सकते हो, या फिर बिटकॉइन की वैल्यू आप आईएनआर के साथ कंपेयर करोगे, तो इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। राइट? व्हाई इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग? डिमांड एंड सप्लाई का गेम है पूरा, जिसकी वजह से इसके प्राइस हिलते रहता है। बट अगर मैं आपको 100 साल पहले लेके जाऊं, जब गोल्ड ही था केवल जिससे हम ट्रेड करते थे, तब क्या आज आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं तो गोल्ड के प्राइस भी तो फ्लक्चुएट करते हैं, है ना? राइट?
गोल्ड के प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है, बट वी आर नॉट यूजिंग गोल्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ वैल्यू, बट हम किसी टाइम पे गोल्ड यूज करते थे सो दैट वी कैन ट्रांसफर वैल्यू। अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं आपको मे बी 5 गोल्ड कॉइन्स दे दूं सो दैट आई कैन परचेज समथिंग फ्रॉम यू। राइट तब राइट। गोल्ड ही था केवल एक स्टैंडर्ड। हाँ अगर आगे चल के केवल बिटकॉइन एक स्टैंडर्ड हो जाएगा तब आप क्या बोलोगे कि इसका प्राइस फ्लक्चुएट करेगा? यूएस डॉलर और आपकी जो भी करेंसी अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो पीपल विल नॉट कंपेयर इट, राइट? और जब वहां पे कंपैरिजन ही नहीं रह जाएगा चीजों का तो फिर फ्लक्चुएशन रहेगा ही नहीं। आपको अगर मेरे से बिटकॉइन ही चाहिए और मैं आपको, आपने अगर बोल दिया कि यार आई विल सेल यू दिस थिंग फॉर 0.1 बिटकॉइन, तो मेरे को आपको 0.1 बिटकॉइन देना है। इट्स वेरी क्लियर, राइट? राइट राइट। आप उसको, वो तो चीज फ्लक्चुएट नहीं करेगी ना, वो नंबर तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। बट आपने क्या करा, आपने बोला कि आई विल टेक $1 लाख टू सेल दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया आपके पास, मैंने बोला ठीक है $1 लाख की जगह मैं आपको बिटकॉइन दूंगा। अब मैंने क्या करा, $1 लाख के को कंपेयर करा कि कितना बिटकॉइन आएगा एक $1 लाख में। अब वो जो प्राइस है बिटकॉइन का वो किस पे डिपेंड करता है, मार्केट में उस टाइम पे डिमांड कितनी है और सप्लाई क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन का प्राइस क्या आएगा। और अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, तो वो फ्लक्चुएट कर रहा होगा। बट जब एक ही स्टैंडर्ड होगा ट्रांसफर करने का वैल्यू को, तो वहां पे फिर कोई फ्लक्चुएशन रह ही नहीं जाएगा। फिर तो आपने बोला कि मेरे को 0.1 चाहिए तो मैं 0.1 ही भेजूंगा, राइट? मैं 0.1 नहीं भेज सकता। राइट एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? मतलब यही स्टैंडर्डाइजेशन का यही सेंस है, राइट? बट अभी इस पॉइंट पे इन टुडेज डेट, राइट, इज इट एक्चुअली बीइंग यूज्ड लाइक दिस? मतलब ऐसा स्टैंडर्ड वे में इज इट बीइंग अप्लाइड, लाइक क्रिप्टो इज बीइंग यूज्ड इन दिस वे? वेरी रिसेंटली, आई गेस येस्टरडे ओनली, डोनाल्ड ट्रम्प किसी कैंपेन के लिए गए हुए थे और उन्होंने जो भी उनके टीम के मेंबर्स थे उनके लिए बर्गर खरीदा और उसके लिए उन्होंने पेमेंट करा यूजिंग BTC। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल जहाँ पे अभी पीपल आर प्रमोटिंग इट, राइट? सो दैट people can jump from US dollars to Bitcoin. Not just Bitcoin, it can be any other crypto, right? कुछ भी हो सकता है यार आज के टाइम पे। आप here we are talking about Bitcoin, but there are number of other cryptocurrencies which you can use, right? So yeah, understood. And that is a very great insight to actually hear about. So that अभी इस point पे it is not that developed in the sense कि अभी applications इतने ज़्यादा prominent नहीं है, but in some time the applications will be visible and prominent and will be available on every e-commerce website, right? That's what we can accept. True. Right. अब अगर if I just give you this example, आज के थोड़े टाइम पहले आज के टाइम पे everyone is using digital rupee. Right. कोई वॉलेट में कैश नहीं कैरी करता, मेरे पास वॉलेट में नहीं, मैं वॉलेट लेके जाता ही नहीं हूँ। मैं तो हर जगह अपना फोन लेके जाता हूँ, एंड आई गॉट पेटीएम, फोन पे एंड ऑल दीज एप्स इन माय फोन। और कहीं भी पेमेंट करनी होती है आई यूज दीज एप्स टू मेक द पेमेंट, राइट? अब 10 साल पहले अगर आप ये बात करोगे कि यार आगे आने वाले टाइम में हर जगह मोबाइल यूज होगा पेमेंट करने के लिए, लोगों को नहीं समझ में आएगा, उनको दिखेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है आगे चल के, राइट? सेम इफ आई टॉक अबाउट बिटकॉइन, आज के टाइम पे बिटकॉइन जहाँ पे है, जो अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को आज देखोगे ना, तो जब इंटरनेट जो 2000 में था ना, आज ब्लॉकचेन पे है। समझो ये, मतलब अभी दिस फील्ड इज वेरी इमर्जिंग, अभी स्टार्ट ही हो रही है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की कहानी। इनफैक्ट वेरी रिसेंटली यूएस के एसईसी ने अप्रूव किया बिटकॉइन और इथेरियम का ETF। तो अब धीरे धीरे आज भी आप देखोगे मोस्टली कंट्रीज में इट्स इलीगल, एंड देयर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे लीगल है बिटकॉइन, क्योंकि जो कंट्रीज आज के टाइम पे उनको पता है कि ये कैसे ग्रो करने वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प आज के टाइम में हर कैंपेन में ही इज प्रमोटिंग बिटकॉइन, ही इज प्रमोटिंग क्रिप्टोकरेंसीज, ही इज प्रमोटिंग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में अभी जितना US डॉलर स्ट्रॉन्ग है, बट US की इकोनॉमी जैसे जा रही है, राइट, अगर कल को US डॉलर कोलैप्स करा तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। आप क्या रखोगे अपने जेब में, राइट? गोल्ड क्यों रखते हैं आज? क्योंकि हम गोल्ड, हमको पता है यार कि अगर कल को हमारी इंडियन रूपी कोलैप्स कर गई तो हमारे पास गोल्ड होगा, है ना? आप अगर बाकी कंट्रीज में देखोगे जो बहुत छोटी कंट्रीज है, उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। तो अगर सेम US डॉलर की केस में हो गया, कल को US डॉलर कोलैप्स हो गया, तो जितनी भी आपकी स्टॉक मार्केट है, जितनी भी आपकी ये सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी और फिर वैल्यू आएगी गोल्ड की।
Right. गोल्ड प्राइस आज के टाइम पे ऊपर जा रहा है, यही रीजन है कि यूएस Hmm. डॉलर पे यू नॉट कंप्लीटली रिलाई, Hmm. राइट? तो आगे चल के 10 साल बाद यू विल सी कि हर जगह क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही होगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने सीबीसीडी लेकर के दे आर इंट्रोड्यूसिंग सीबीसीडी। सीबीसीडी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, Hmm. राइट? तो एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स ब्लॉकचेन एंड Right. आने वाले टाइम में बिटकॉइन विल टेक ओवर गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की तरह जाना जाएगा। और जो हम नॉर्मल करेंसी जैसे ट्रेड ऑफ करते हैं वो सारी चीजें ब्लॉकचेन पे आ जाएंगी और सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी पे होने लगेंगी धीरे धीरे। राइट, मतलब अभी पता है प्रेजेंटली, मतलब अभी आई वाज लिसनिंग टू अ डिस्कशन अबाउट द अपकमिंग ट्रेंड्स, राइट? तो पीपल वर लाइक आरबीआई ने भी अभी कुछ गाइडलाइंस वो करी थी, जाहिर करी थी कि बैंक्स शुड एक्चुअली स्टार्ट प्रोवाइडिंग द पीपल द राइट वैल्यू फॉर द मनी, राइट, जो कि वो बैंक्स में डालते हैं, right? Because the thing is that how are these banks operating, right? Banks are operating with the money that people are putting in their accounts, right? They're trading this amount and generating the money, right? They're lending the money in form of loan to people and getting जो interest होता है, right? And that's how they're putting the money back in the accounts, right? Like this is how the banks operate, right? But जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है ना that the like the trading setup or the blockchain setup, right? The crypto and many more things that are actually giving good returns in comparison to like the actual FDs or the interest that we get while keeping our money in the banks. So people are just withdrawing the money now, right? They're not putting the money in the banks, right? And it is actually a threat to the banks because the whole banking system might collapse because of this, right? जैसे UPI आया था, उसके अब like the companies are working on ULP, राइट? तो पेमेंट हो गया, नाउ लोन इज ऑल्सो बीइंग मॉडर्नाइज इन सच अ वे ताकि जैसे हम यूपीआई करते हैं ना, सो यू कैन गेट लोन्स इन दैट सिमिलर वे, राइट? अब आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड दी सो फिर बैंक ब्रांचेस का यूज करेगा, कुछ नहीं रहेगा बिकॉज पीपल आर नॉट विजिटिंग दीज ब्रांचेस, राइट? एंड इन द लॉन्गर पिक्चर दीज प्रोफाइल्स आर ऑल्सो गॉन, राइट? मतलब जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे जो ब्रांचेस में बैठते हैं, यू नो, लाइक देयर आर अ लॉट मोर थ्रेट्स एंड like this is all the future side because of the upcoming trends in the crypto industry specifically, right? The blockchain industry कि सब चीजें इस हद तक सिक्योर हो जाएंगी, इस हद तक इट विल बी ऑटोमेटेड, राइट? ताकि the people will be actually utilizing and trading using their mobiles and everything, right? So the whole banking setup will disrupt एक तरीके से, right? Traditional जो अब तक चलता आ रहा है, right? And this is a very interesting thing to actually, you know, research about. How are the banks now how are they planning to tackle this problem, right? Because people are understanding the the application of everything. मतलब हमसे पहले वाली जनरेशन तो जितनी थी, they were, you know, not the risk takers, right? But जो हमारी जनरेशन, हम लोग रिस्क करने में we are not actually that hesitant, right? तो हमें अपने मतलब पैसे मार्केट में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, right? And like this was really great when I was just reading through it. और वहाँ पे भी मतलब everything is integrating धीरे धीरे करके, right? When we look to the future, right? AR VR भी integrate हो रहा है, blockchain is integrating into one thing, right? And everything is making a, you know, a centralized environment जहाँ पे we will be actually, you know, dealing with everything on regular basis, जहाँ पे ये सब चीजें अप्लाई हो रही होंगी. And this is a very, you know, fascinating future that we can see, right? अच्छा, now moving towards the overview about the blockchain industry in India specifically, तो इसके बारे में आपका क्या take है? Yeah, so if I talk about blockchain industry in India, शायद नहीं पता होगा मोस्टली लोगों को, पर आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स आपके इंडिया में हैं, और सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स इंडिया में हैं. एंड पीपल get confused with Bitcoin or blockchain. So blockchain और Bitcoin एक चीज नहीं है actually. Blockchain is the technology behind Bitcoin. और जो Bitcoin है, it's an application of blockchain. Bitcoin की तरह there is Ethereum, there are number of other cryptocurrencies. पर लोगों से जब आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात करते हो या ब्लॉकचेन डेवलपर अपने आप को बताते हो, तो लोग बोलते हैं यार यू मस्ट बी अ ट्रेडर जो बिटकॉइन खरीदता होगा, ऐसा कुछ करता होगा, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन इज. उनको लगता है कि ठीक है, अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोकरेंसीज, यू आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन का ट्रेडिंग एंड यू मेक मनी थ्रू ट्रेडिंग बिटकॉइन एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? बट ब्लॉकचेन is actually the technology behind Bitcoin, and Bitcoin is just an application of blockchain technology. और इंडिया में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे
इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसे अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, बट दे डोंट नो कि ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन फीड क्या है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। और अगर आप लोगों से बात करोगे ना, तो you will find number of people who are very who don't want to invest money in blockchain, या फिर who don't want to invest money in cryptocurrency। उसका रीजन ये है कि उनको आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि कहीं कुछ हैक हो गया है, या फिर इतने कोई एक्सचेंज हैक हो गया और इतने $multi-million वाइप हो गया, वहां से इतने का लॉस हो गया लोगों को। बट लोग ये नहीं समझते कि ब्लॉकचेन कभी हैक नहीं हो सकती। जो चीजें हैक हो रही हैं वो है एक्सचेंजेस जहां पे आप खरीदते हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि और ऑल दीज एक्सचेंजेस आर जस्ट, ये दुकानें हैं, राइट। अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ आज कि मेरे को 100 रुपए के बदले ये क्रिप्टो करेंसी चाहिए, तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा और आप मेरे को कुछ क्रिप्टो करेंसी दोगे। बट पीपल आर नॉट अवेयर कि हाउ टू स्टोर दीज क्रिप्टो करेंसीज इन देयर वॉलेट। उनको पता ही नहीं है। उनको जो करेंसी जो भी खरीदते हैं, जैसे वजीर एक्स आज के टाइम पे कुछ दिनों पहले हैक हो गया और $500 मिलियन आई गेस उनका टोटल वॉलेट का बैलेंस था, और उसका 50% हैक हो गया, ऑलमोस्ट $250 मिलियन। 250 मिलियन लोगों के वाइप हो गए, चले गए। मेरी इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपए थी तो मेरा 50,000 रुपए तो गायब हो गया, क्योंकि उनका वॉलेट हैक हो गया वजीर एक्स का। तो अब आप ये बोलो कि यार ब्लॉकचेन हैक हो गया, नहीं, ब्लॉकचेन नहीं हैक हुआ था। वहां पे जो एक्सचेंज है वजीर एक्स, उनका जो वॉलेट था वो हैक हो गया। अब मैं आपको बोलूं कि आपका फोन है, ठीक है, और आपके फोन में आप नेट बैंकिंग यूज करते हो। अब आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपके दोस्त को पता है, और आपका नेट बैंकिंग किसी आपके दोस्त ने यूज कर लिया, तो आप क्या ये बोलोगे बैंक हैक हो गया? नहीं ना। क्या क्या हुआ? आपका वॉलेट या आपका फोन जो था उसका पासवर्ड किसी को पता चल गया, आप उसने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया आपका बैलेंस या फिर आपका बैंक अकाउंट। पर बैंक तो सही तरीके से काम कर रहा है, बैंक में तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, राइट। आपके अकाउंट में हुई क्योंकि आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया। सेम यही होता है यहाँ पे भी। लोगों को, पीपल आर पुटिंग मनी क्रिप्टो करेंसी में, पैसे डाल लेंगे, ठीक है यार मेरा पैसा बढ़ जाएगा, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या है, वॉलेट्स क्या होते हैं, कैसे स्टोर करा जाता है, कैसे ट्रांसफर करा जाता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, लोगों को कोई आइडिया नहीं है। उनको बस पैसा डालना है। आज मैंने 100 रुपए डाला, कल को मेरे को 500 रुपए चाहिए या 1000 रुपए चाहिए मार्केट से। और लोगों का माइंडसेट ऐसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम कहीं भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमको मोस्टली मेजरली यही मिलता है कि बिटकॉइन का दाम इतना बढ़ गया, या फिर बिटकॉइन इतना नीचे चला गया, या फिर इस बंदे ने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में पैसा डाल के इतने रिटर्न्स मिले उसको, राइट। तो we keep reading all these sort of articles in newspaper. We don't know what exactly blockchain is, how to make transfer on blockchain, how to store cryptocurrencies securely in your wallet. ये चीजें पता ही नहीं है लोगों को, और लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी एक एप्लीकेशन है जो ब्लॉकचेन पे हमने बनाया हुआ है। These two things are somewhat related to each other, पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी के हैक को ब्लॉकचेन से जोड़ करके आप ब्लॉकचेन को बोलो कि ब्लॉकचेन खराब है, तो ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ब्लॉकचेन इज अ पब्लिक डेटाबेस जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, और जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं। तो ब्लॉकचेन कभी भी हैक नहीं होता। हैक आपका एक्सचेंज होता है जहां पे आपने स्टोर करा है। इट कैन बी वजीर एक्स, इट कैन बी CoinDCX, कुछ भी हो सकता है। Got it. And when we talk about the blockchain industry in the foreign countries, right, like the developers, the real developers, right, so like how is the scope of blockchain actually developing in India in comparison to these countries, right, and what can the students expect and how can they develop that particular skill set to be relevant to the industry? Well, right now in India there are not number of companies who are actually using blockchain technology, Right. or all these companies who are actually using blockchain technology right now in India, they are a blockchain solution based company. उनका अपना प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया के डेवलपर्स बहुत स्मार्ट है, राइट, और इंडिया में लेबर सबसे चीप है। तो बाकी कंट्रीज में जो भी प्रोडक्ट्स ब्लॉकचेन पे बन रहे हैं वो इंडियन डेवलपर्स को हायर करते हैं, क्योंकि इंडियन डेवलपर्स दे आर चीप। अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर की एवरेज सैलरी देखोगे तो इट इज समवेयर अराउंड 1,20,000 US डॉलर्स, जो कि 1 करोड़ हो गई।
right? Hmm. और if I talk about इंडिया में सैलरी ब्लॉकचेन डेवलपर की, तो इट कैन बी समवेयर अराउंड 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट, डिपेंडिंग Hmm. अपॉन किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कितना ज्यादा Hmm. आपको पता है सारी चीजें. Hmm. But India में there are not number of companies who are actually hiring blockchain developers because you cannot, it's very tough for you to find a company who is actually building a blockchain based product in India. मैंने गुड़गांव में एक कंपनी के लिए काम करा था जो कि रूबा फाइनेंस थी. देयर इज वन मोर कंपनी व्हिच इज क्वेल ऑडिट्स. और भी कंपनीज हैं, बट यार अब अगर आप वेब डेवलपमेंट की कंपनीज गिनोगे, अगर आप डेटा एनालिटिक्स देखोगे कि कितनी का हर कंपनी, हर स्टार्टअप में डेटा एनालिटिक्स का बंदा चाहिए, पर क्या हर स्टार्टअप में ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए? नहीं. इफ दे आर नॉट बिल्डिंग समथिंग इन ब्लॉकचेन, उनको ब्लॉकचेन का बंदा नहीं चाहिए होगा, राइट? Right. आज के टाइम पे अगर 1000 कंपनीज हैं गुड़गांव या नोएडा में, तो उसमें 10 कंपनी मिलेगी आपको जो कि ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट पे काम कर रही होगी, बट किसी और कंट्री में किसी और कंपनी के लिए. Hmm. So that's why it's very tough in India to find a good blockchain developer job. But if you can find one, you can easily get good salary, good package as well. And if I give you my example, जब मैं job में था, I come from GBU, right? And as you know, our average package is 3 to 4 lakhs. But मैं उस कॉलेज से जब मैंने ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का करियर चुना और मैंने जब डेवलपमेंट स्टार्ट करा, तो मैंने मेरी पहली जॉब आराम से 11-12 लाख का पैकेज था मेरा. और अगले 3-4 महीने में 11-12 लाख से 40 lakhs का पैकेज हो गया, राइट? तो इट्स अबाउट कि हाउ स्मार्ट यू आर विद योर स्किल सेट. ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में पैसा बहुत है, पर अगर आपको चीजें आती हैं, और अगर चीजें आती हैं, आपको पता है हाउ टू अप्रोच कंपनीज, देन यू कैन इजीली गेट अ पैकेज ऑफ 1 CR. 1 CR तो आप 3 साल में, अगर आपने ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखा है, तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. बट अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करोगे, तो बहुत डेवलपर्स पड़े हैं. हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है वेब डेवलपमेंट, और उतने ही बंदे भी पड़े हैं मार्केट में, राइट? Hmm. तो अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे, तो आप 20 लाख कमा रहे होगे 4 साल बाद, या 25 या 30 लाख कमा रहे होगे, पर 3-4 साल में ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आपका पैकेज इजीली इट कैन बी 1 CR. तो बहुत मेजर डिफरेंस है. और इफ यू वांट टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर, तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि जितना सीख सकते हो उतना ट्राई टू लर्न ऑल दीज व्हाट एग्जैक्टली is going in the industry right now, किस टाइप के डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या people are building, what sort of new solutions they are building, right? All these companies who are actively fundraising or who are active in development of blockchain products, उनको आप ढूंढो. कंपनीज, you can easily find companies on LinkedIn as well as there are a number of other platforms, and start applying to them. You can find a good job. Definitely, definitely, and that's a very valuable takeaway for the students. Like honestly, very valuable, right? Yeah. So, अब you mentioned about the right skill set, right? The right resources, right? So this is also a very common question that the students have, whomsoever are actually trying to target blockchain as a career. So there is not a lot of information that is available about blockchain on the web, right? मतलब ऐसा है कि you can understand blockchain, but how to actually go through it, there is not a certain roadmap kind of a thing that is available for the students, right? So based on your experience, whatever you have learned throughout like your corporate life, right, for the years that you have worked for, right? So like what is the right guidance that you would like to give to the students in terms of the roadmap that the students can actually follow and the resources that the students can actually refer to? Well, so basically, again, blockchain development is not that tough. It's very much आप ऐसा कह सकते हो कि जितना वेब डेवलपमेंट के लिए आपको मेहनत करनी है, उतनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए मेहनत करनी है. और मैंने ऑनेस्टली 2 हफ्ते में पढ़ाई करके एक इंटरव्यू क्रैक करा था, जो मेरी पहली जॉब का था. तो इफ आई टेल यू कि व्हाट आर दोस थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न, तो फर्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज. जब एक बार आपको ब्लॉकचेन समझ में आ जाए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज इथेरियम, व्हाट इज सोलाना एंड ऑल दीज टॉप क्रिप्टो करेंसीज. वो हैं क्या? बिटकॉइन समझो कि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन क्या है, हाउ बिटकॉइन इज डिफरेंट फ्रॉम इथेरियम, हाउ इथेरियम इज डिफरेंट फ्रॉम सोलाना. तो जितनी भी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको समझो. जब आपको उनके बारे में समझ में आ जाए, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बिल्ड एप्लीकेशंस ऑन दोज ब्लॉकचेन और ऑन दोज क्रिप्टो करेंसीज. इथेरियम पे कोई एप्लीकेशन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, या सोलाना पे बनाना है कैसे बनाऊंगा, बिटकॉइन पे बनाना है कैसे बनाऊंगा. उसके लिए आप सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़ते हो, जो कि है आपके इथेरियम के लिए. और इथेरियम बहुत फेमस है आज के टाइम पे. अगर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात करूं,
तो इथेरियम सबसे ज़्यादा यूज होती है और उसको सीखना भी सबसे इजी है। उसके लिए आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज सीखनी होगी सो दैट यू कैन राइट ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और सॉलिडिटी लैंग्वेज इज वेरी मच सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको हार्डली 10 से 15 दिन लगेंगे सॉलिडिटी लैंग्वेज समझने में। सॉलिडिटी लैंग्वेज अगर आपको एक बार आ गई देन यू कैन लर्न हाउ टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपको अगर एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आ गया देन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ ब्लॉकचेन डेवलपर। एक ब्लॉकचेन डेवलपर का मेजरली काम होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना। उसके साथ अगर आपको बैक एंड और फ्रंट एंड भी आता है, क्योंकि एक जो प्रॉपर डी ऐप कहते हो जिसको आप, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, क्योंकि हम AWS पे अपना डेटाबेस बना के रखते हैं, कहीं कोई क्लाउड सर्वर यूज कर रहे होते हैं जिसको हम एज अ डेटाबेस यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज आज आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और उस पर बहुत सारे यूजर्स आए, यू कैन इजिली वाइप द डेटा, राइट? आप कभी भी डिलीट कर सकते हो, आप कभी भी वाइप आउट कर सकते हो किसी भी यूजर का कोई भी डेटा, आप चेंजेस कर सकते हो। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की मतलब पहली रिक्वायरमेंट यही है कि जो आपका डेटाबेस होना चाहिए, या फिर हाँ, जो बेसिकली डेटाबेस के लिए आप यूज कर रहे होगे दैट शुड बी ब्लॉकचेन। ओके, तो आपका जो लॉजिक है, जो लॉजिक लिखा हुआ है, जो डेटा आप जहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो वो आपका ब्लॉकचेन होगा, और ब्लॉकचेन पे जो आप लिखोगे उसको आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो Got it. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉजिक दैट यू राइट ऑन ब्लॉकचेन, and inside blockchain you store data, inside blockchain you have your logic written, और उसके साथ आप फ्रंट एंड बनाते हो जो कि आपके ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करता है। So there is front end, there is blockchain, and there can be a back end as well जहाँ पे आपने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है so that you can maybe जो लॉजिक आपको ब्लॉकचेन पे नहीं लिखने हैं, राइट, तो उनको आप अपनी बैक एंड स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। So there is front end, there is back end, and then there is blockchain, और ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जिसको आप डी ऐप कहते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे ब्लॉकचेन यूज कर रहे हो एज अ डेटाबेस और टू राइट सम लॉजिक, राइट, तो आप उसको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं। Got it. Got it. And when we talk about the resources from which the students can actually learn doing these things, so you must have also, started from some specific channels, right? Or some Yeah. specific documents. So if you could just mention the names, and so that the students can also refer to the same Yeah, resource. there are number of YouTube channels, right? One I remember is Solidity Program or something like this. तो जो सबसे बढ़िया मुझको लगा था वो सॉलिडिटी प्रोग्रामर लगा था। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इथेरियम की सॉलिडिटी लैंग्वेज के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। तो दिस इज वन चैनल दैट यू कैन यूज। उसके अलावा देयर आर मल्टीपल चैनल्स, लर्न डीफाई, और बहुत सारे चैनल्स हैं। यूट्यूब पे आप सब कुछ सीख सकते हो। आज के टाइम पे ब्लॉकचेन का पूरा कंटेंट इज ऑन यूट्यूब। आपको किस लैंग्वेज जिसमें भी सीखना है, यू कैन इजीली गो टू यूट्यूब, टाइप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, एंड यू कैन फाइंड नंबर ऑफ गुड चैनल्स। बट मे बी आई कैन पास यू द लिस्ट दैट यू कैन पुट इन द हाँ यार, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, ठीक है? सो या, यूट्यूब इज वन जहां आप सीख सकते हो। उसके अलावा देयर इज यूडेमी प्लेटफॉर्म, वहां पे यू कैन इजीली परचेज courses which will cost you 500 or 350 rupees. So you can easily enroll yourself in multiple courses, and from Udemy you can easily learn blockchain development as well. तो मैंने अपने टाइम पे तो Udemy मेजरली यूज करा था, और साथ में YouTube पे चैनल्स यूज करे थे। उसके अलावा मैंने किसी भी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल नहीं करा था। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा, आपको कोई मतलब नहीं है कि आप मार्केट में जाकर के 50,000 1 लाख रुपए दो किसी भी कोर्स का, और इतना महंगा कहीं सीखो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आज के टाइम में 1 महीने में फ्री में सीख सकते हो, और 1 महीने में अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप इजीली कोई भी अच्छी जॉब क्रैक कर लोगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। एंड इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, एक मेरा जूनियर था जिसको मैंने बताया था कि भाई ये पढ़ ले, ऐसे ऐसे पढ़ ले, उस बंदे ने लास्ट ईयर में मुझसे पूछा कि भैया आई वांट टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर लाइक यू, हाउ कैन आई स्टार्ट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने उसको बताया कि 3 महीने लगेंगे मैक्सिमम। अगर आपने कुछ भी कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपको फ्रंट एंड नहीं आता, बैक एंड नहीं आता, आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती, आपको 3 महीने लगेंगे। उस बंदे ने मेरे साथ 3 महीने दिए। मैंने उसको टॉपिक्स बताया, ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, सारी चीजें बताई उसको। 1 महीने उसने पढ़ाई करी, अगले महीने उसने एप्लीकेशंस बिल्ड करना स्टार्ट करा, तीसरे महीने उसकी 10-11 लाख की जॉब लग गई, और अभी वेरी रिसेंटली उसकी 50 लाख की 55 लाख की जॉब लग गया।
एक यूरोप की कंपनी है। तो समझ रहे हो, अभी उस बंदे का कॉलेज खत्म हुआ है और कॉलेज खत्म हुए बस 4 महीने हुए हैं और उस बंदे की जॉब लगी है। 55 लाख भी नहीं, मेरे ख्याल से 60 लाख का पैकेज है। पैकेज इज ऑलमोस्ट 50,000 यूरोज। अगर 50,000 यूरोज और 60,000 समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ है यूरोज में पैकेज है उसका। एंड इट्स अ फ्रांस बेस्ड कंपनी। तो नॉर्मल मतलब ऑन एन एवरेज 50 लाख मान के चलो उसका पैकेज, कॉलेज के खत्म होने के 4 महीने बाद। एंड ही इज फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। और उसने अभी 4-5 मतलब जब वो कॉलेज में था तब उसने पूछा, 3 महीने में प्रिपेयर करा, फिर एक कंपनी के लिए 5-6 महीने जॉब करा 10-11 लाख के पैकेज पे, और अभी रिसेंटली उसका इतना बड़ा पैकेज लगा है। तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, अगेन मैं तो लोगों से बोलूंगा, अगर आप जा रहे हो वेब डेवलपमेंट की तरफ और बाकी फील्ड्स की तरफ, एंड इफ यू वांट टू बी अ कोडर, यार गो फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कोडर्स बहुत कम है एंड इजीली यू कैन गेट अ पैकेज ऑफ 50-60 lakhs। और 1-2 साल में अगर आपने मेहनत करी है तो 1 CR तो आपका कहीं नहीं गया यार। आपके दोस्त वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे 20-30 लाख कमा रहे होंगे, आप 1-2 साल में इजीली यू कैन मेक 1 CR। राइट, एंड मतलब ये तो काइट प्रोमिनेंट है, लाइक लुकिंग एट योर प्रोफाइल एज वेल। ये सिर्फ बातें नहीं है, लाइक दिस इज द रियलिटी, राइट? इफ Yeah, यू this कैन डू is इट the देन reality. एनीवन कैन डू इट, राइट? मतलब True, 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 like it is true. quite In fact, applicable, right? yeah, in fact, if I tell you, I've worked with 3 to 4 startups. I've started my journey from Listo as a blockchain developer. There, I worked for 3 to 4 months as a smart contract developer, and I was the only person in that company who knows blockchain development, who knows how to write a smart contract. और मैंने आपको बताया, मैंने इंटरव्यू के 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाई करी थी, और मैं वो पढ़ करके Udemy के कोर्स और YouTube पे सीख करके चला गया। और मैंने सो यू नो बुक माई शो प्लेटफॉर्म, राइट? वहां पे एक मूवी आई थी KGF 2 बहुत पहले, 2022 में KGF का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ था। तो जो प्रोडक्शन हाउस था KGF 2 का, उन्होंने डिसाइड करा था KGF 2 की NFTs लॉन्च करेंगे। तो जो KGF 2 की जितनी भी NFTs आपको बुक माई शो प्लेटफॉर्म पे दिखी या मिली, या आपने अगर सुना भी हो, आप गूगल कर सकते हो KGF 2 की NFTs के बारे में, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वो सारी मैंने बनाई थी। मेरी कंपनी लिस्टो थी जिन्होंने ये पूरा अपने अंडर में लिया था प्रोजेक्ट। और जो कोर पार्ट था ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने का, आई वाज द ओनली पर्सन इन दैट टीम जिसने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे। और उस कंपनी में काम करने के बाद आई स्विच टू अनदर कंपनी, और उसके बाद आई स्विच टू अनदर कंपनी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज इन मार्च, उसके 3-4 महीने बाद ही बाय अगस्त आई गॉट अ पैकेज ऑफ 40 LP। तो मेरा कॉलेज खत्म हुए 6 ही महीने हुए थे उसके, मतलब मार्च के बाद यू कैन ऐड, अगस्त में मेरे को पैकेज मिल गया इतना बड़ा। And then I worked as a smart contract developer for that company, and after that I resigned. और उसके बाद मेरे को खुद का कुछ करना था, so I started मेरी स्किल प्लेटफॉर्म, और साथ में I got invitation from number of colleges as a guest lecturer. तो मैंने अपना कॉलेज खत्म ही किया था कि मैं मास्टर्स यूनियन के लिए एज अ गेस्ट फैकल्टी ब्लॉकचेन पढ़ा भी रहा था लोगों को। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU, इन सारी यूनिवर्सिटीज में मैं लेक्चर लेने गया हूँ। 2-2 हफ्ते के, 3-3 हफ्ते के इनके प्रोग्राम्स लेने गया हूँ अबाउट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, हाउ दे कैन रन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। सो इफ यू नो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, इफ यू आर स्मार्ट, एंड इफ यू कैन इजीली फाइंड अ गुड जॉब, और अगर आपको आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, आप जो सीखे हो आपको बताना आता है लोगों को, आप लिंक्डइन पे डाले हुए ताकि लोगों को पता चले कि इस बंदे को डेवलपमेंट आता है, देन देयर इज टू मच डिमांड इन मार्केट, और आपको इजीली कोई भी हायर कर लेगा, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो राइट नाउ Definitely. ब्लॉक समथिंग वेयर यू कैन इजीली गेट अ गुड जॉब एंड गुड अपॉर्चुनिटी। Definitely, and that's a fair enough overview. I just want to ask the students who are watching this video is point tak, right? Ki just take a notepad and write these points down, right? So that you can actually refer to these points once you're done watching the video, right? जो भी या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसको यूटिलाइज करना, रिसर्च करना, और अगर सच्ची में इंटरेस्टेड हो तो सीखना जरूर, right? Because apply these takeaways in your life, because these are coming from his experience directly, right? Because he has faced these things, he has developed the right skills, and that in such a short span of time, to applying to certain roles as well. His story is completely like, it is a really amazing story to listen to, honestly, right? Because I am using the wrong word story, because it is the reality that he has implemented, right? And he has experienced, right? So
Definitely, like it is really great to hear to your journey till this point, right? Now, when we talk about the myths that are associated with blockchain, right? So there are many misconceptions that are Yeah. prevailing in the industry, right? So what is your take on this thing? Well, firstly, सबसे बड़ा myth I feel is people think that blockchain and Bitcoin and Ethereum they all are same thing, right? Bitcoin, जैसा मैंने बताया, Bitcoin and Ethereum is just an application which is built on this blockchain Hmm. technology. Yeah, Hmm. there are number of other things जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं blockchain technology पे. Hmm. तो अगर कल को बिटकॉइन का दाम 50 लाख से 25 लाख चला जाता है तो लोग सोचते हैं यार कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही खराब है. Huh. बट यार वही बात है ना कि अगर आप किसी एक एसेट क्लास को देख रहे हो, ठीक है, आपने बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन इज जस्ट एन एसेट क्लास Hmm. जहां पे देयर इज डिमांड एंड सप्लाई. आज अगर डिमांड है तो प्राइस ऊपर है, अगर सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई तो प्राइस नीचे आ जाएगा. पर उसका Right. ये मतलब नहीं कि ब्लॉकचेन खराब है. Hmm. ब्लॉकचेन अपने में एक अलग, इट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट? अगर आप एआई देख रहे हो आज के टाइम पे, अगर आप एआई का अच्छी जगह यूज करोगे और सही तरीके से यूज करोगे, देन एआई इज समथिंग व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट? बट अगर आप उसी चीज को गलत तरीके से यूज करो और आप बोलो कि एआई खराब है, तो फिर तो गलत आप ही हुए, राइट? क्योंकि एआई तो एक एप्लीकेशन, एक टेक्नोलॉजी है जिसपे आप एप्लीकेशन बिल्ड करो. चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एआई पे बना हुआ एप्लीकेशन ही तो है जहाँ पे यू कैन आस्क एनीथिंग. वैसे ही बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है. तो अगर आज के टाइम पे सबसे बड़ा मिथ ही यही है. लोगों को आप बोलोगे ब्लॉकचेन डेवलपर, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, यू आर समवन हु ट्रेड्स बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड ऑल दीस क्रिप्टोकरेंसी, सो यू आर अ ट्रेडर. बट यू आर नॉट अ ट्रेडर, you are a person who builds application on blockchain technology, right? So that is Right. number one. Second, people think blockchain is very tough. बहुत tough है, मेरे को नहीं, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को नाम सुन करके ऐसा लग रहा है. Blockchain is very easy. It's very easy if you compare it with AI, if you compare it with data science, if you compare it with maybe Android app developer, ऐसा कुछ. और मैं तो कहूंगा कि ब्लॉकचेन जो है आज के टाइम पे, अगर केवल ब्लॉकचेन की बात करें तो वेब डेवलपमेंट के लिए जितनी मेहनत करोगे ना, उससे कम ही मेहनत करनी पड़ेगी ब्लॉकचेन सीखने के लिए. बट हाँ, एक फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और ब्लॉकचेन आना चाहिए. बट अगर केवल ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन केवल आना चाहिए, या फिर ब्लॉकचेन अगर आता है तो आप अपने आप को ब्लॉकचेन डेवलपर कह सकते हैं. तो वही पॉइंट है कि सबसे पहले लोगों को ये लगता है इट्स वेरी टफ टू लर्न ब्लॉकचेन. अगेन, इट्स वेरी इजी. ऑल दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यूडेमी एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म. बहुत कम पैसे में यू कैन बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर और बहुत टाइम नहीं लगता है. 1 महीने में आपको चीजें आ जाएंगी. और अगर आपको कोडिंग आती है या फिर थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट आता है, देन अगेन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लर्न ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पार्ट. और थर्ड वन कि ब्लॉकचेन की जॉब्स बहुत कम है. नो डाउट, अगर आप बाकी फील्ड से कंपेयर करोगे तो ब्लॉकचेन की जॉब्स कम है. बट अगर आप ब्लॉकचेन में कंपटीशन और जॉब्स कंपेयर करोगे तो आपको सेम मिलेगा जो रेशियो है. जितनी ज्यादा डिमांड है ब्लॉकचेन में, उससे कम डेवलपर हैं. हाँ, बट जॉब्स भी कम है तो डेवलपर भी उतने ही कम है मार्केट में. अब अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करोगे तो जितनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, बट उससे कई ज्यादा डेवलपर है मार्केट में. Right. तभी तो पैकेज कम है, राइट? ब्लॉकचेन डेवलपर का पैकेज आज इतना ज्यादा क्यों है, ऑन एन एवरेज पैकेज ज्यादा क्यों है? क्योंकि ब्लॉकचेन की जॉब्स जितनी है मार्केट में, उससे कम लोग हैं जो सीख रहे हैं ब्लॉकचेन या जिनको एक्चुअली ब्लॉकचेन आता है. तो अगर आप ये सोचो कि यार ब्लॉकचेन की तो जॉब ही नहीं मिलेगी, नहीं यार, ब्लॉकचेन के तो बंदे ही नहीं है. और जैसा हमारा टाइम आगे जा रहा है ना, ऑल दीज कंपनीज दे आर कमिंग अप विद समथिंग जहां पे दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन Blockchain. टेक्नोलॉजी. Right. And all these companies, they need someone who knows blockchain technology, and they are definitely going to hire blockchain resources in future. So you can be someone who can be hired by these companies. And if I talk about India में तो people are not, they are actively investing. आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं ब्लॉकचेन में, बट बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसीज में. बट उतने ही कम लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में आती है. तो अगर आप ये सोचो कि अगर हर इंसान का पैसा उस टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं लगा हुआ है, और अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको वो टेक्नोलॉजी समझ में आती है,
तो आप अंधों के बीच में, समझ रहे हो ना, कान्हा राजा वाली बात होती है, आप वही हो राइट। कि भाई आप ऐसे बंदे हो जिसको अगर थोड़ा भी आता होगा ना तो आप उनके लिए देवता आदमी हो गए यार, कि ये बंदा अगर बोल रहा है तो इसको ज्यादा ही पता है क्योंकि इसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। पता है। तो यू विल बी इन डिमांड लोगों के बीच में, लोग आपसे कंसल्ट करेंगे, लोग आपको पैसे देंगे कि यार प्लीज मेरे को बताओ कि हाउ टू यूज क्रिप्टो करेंसीज, वेयर टू स्टोर, सिक्योर वे में कैसे स्टोर करूं ताकि कोई हैक ना कर ले, सारी चीजें, राइट। तो आपको खुद ही अंदाजा मिल जाएगा कि कितनी डिमांड है आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन डेवलपर्स की। आप बस इंटरनेट पे जाके देखो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कहाँ है क्रिप्टो करेंसी, और इंडिया अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ लो कि आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एज अ करियर कहाँ जा रहा है। और आप नंबर्स भी देख लेना कितने लोगों को ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आता है, आपको समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा स्कोप है इसका। डेफिनेटली, एंड दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल टेक अवे एज वेल। मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया आपने इस आंसर में, राइट। एंड लाइक दिस आंसर इज अ लिटिल गोल्ड माइन फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब जिनको भी हु आर एक्चुअली टारगेटिंग ब्लॉकचेन एज अ करियर, राइट। तो ये सारे बेसिक पॉइंटर्स पता होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही इन्हीं कुछ फैक्टर्स की वजह से ना डर बैठ जाता है बच्चों में। मतलब बच्चे, मैं देखता हूँ ना अपने आसपास में, जैसे कॉलेज में भी, तो देयर आर स्टूडेंट्स व्हेन आई आस्क देम, मतलब जूनियर्स भी आते हैं कि भैया व्हाट टू डू, राइट। मतलब अभी फर्स्ट ईयर में बताऊँ कि क्या क्या कर सकते हैं। मतलब टेक का इतना आइडिया नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक गाय, राइट। बट लिसनिंग टू यू ऑल गाइज, राइट, पीपल whom I'm taking podcast with, so I have somewhat overview, ठीक है, कि कुछ कुछ तो पता लग रहा है धीरे धीरे, राइट। सो आई आस्क देम कि व्हाट ऑल आर यू ट्राइंग टू डू। तो आज भी बच्चे ना, दे आर लाइक लिटरली टारगेटिंग, ठीक है, कि मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू यार, डेवॉप्स इज वन थिंग दैट इज गुड, ठीक है। हम हर कोई नहीं कर सकते, कंपनीज आर रिलाइंग ऑन डेवॉप्स पीपल, राइट। पूरा पूरा पाइपलाइन बिल्ड होता है उस पर। एंड सिमिलरली ब्लॉकचेन इज वन थिंग जो कि अपकमिंग इंडस्ट्री है। मतलब इतनी सारी पॉडकास्ट लेकर के बातें सुन करके आई गॉट एन ओवरव्यू, ठीक है। नाउ आई कैन ऑल्सो एक्चुअली डिस्क्राइब कि ठीक है ये कर सकते हो, राइट, अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल वेज। एंड आज भी द सिनेरियो इज राइट कि स्टूडेंट्स आर स्टिल फॉलोइंग दोज कन्वेंशनल थिंग्स दैट आर बीइंग टॉट इन द बबल, राइट। जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो रॉ कंटेंट अवेलेबल है, राइट, दैट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली रेफरिंग टू अभी भी, आज भी घूमते हुए, कि व्हेन दे आर सर्चिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो दे आर गेटिंग कि ठीक है आई कैन डू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर आई कैन डू वेब डेवलपमेंट, राइट। बट दैट इज नॉट द रियल थिंग नाउ, राइट, बिकॉज बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। एंड वाई टू फॉल इन दैट रैट ट्रैप अगेन, है ना। राइट। तो you actually need to step out of the box, move out of the bubble, right, and explore the industry, that explore the things that suit you the most, right। ऐसा नहीं कि आपको कोई कुछ बता रहा है, just explore on your own ना, कि what is more relevant and what all can I do। मतलब at the end तो you want to earn, right। मुद्दा तो पैसा कमाना ही है, right, out of all the work that you do, right। So why settling for less? If you can put in efforts and gain good amount of money, I'm not saying that it is easy, right, everything is hard, everything needs hard work, right, but it is a way where competition is less, right। Blockchain is one of those things, right, and definitely it will boom in the future, like this thing is guaranteed, right, कि आना ही है, right। Everywhere you'll be seeing the applications, and it will be really great to actually have people actually exploring these industries. And it is good to see people flourishing rather than struggling, right, in the industry, because it is bad for the nation as well at some point. True. Right. So definitely we had an overview about blockchain, what it is, how to build it, right, what are the resources that the students can refer, right, the myths about blockchain. Now let's get little bit in depth about blockchain and have a more in-depth discussion about the certain topic, right, more of the industry overview and the future side of the blockchain, right, in the specific terms. So how do you see blockchain transforming the industries beyond finance? Because we have discussed the financial applications of blockchain till this point, right? So how do you see blockchain transforming the whole industry apart from finance, right, in the upcoming 5 or 10 years? Well, I feel, as I've told you, in very simple words, what exactly blockchain is just a database, right? Right. And it's a database which is completely decentralized, right? And decentralized where no one can make changes to the data which is already saved on blockchain. Right now, today, number of universities are using blockchain technology to store certificate to give degrees to their student. जो डिग्री आपको मिल रही है वो डिग्री अगर ब्लॉकचेन पे कल को स्टोर हो गई आपके कॉलेज से और आप किसी कंपनी पे अप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ भी चेंजेस अगर अपनी क्या कहते हैं फिजिकल कॉपी में करोगे और वो बंदा अगर ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर लिया
तो उसको डेफिनेटली इजीली ही कैन ट्रैक द चेंजेस, राइट? एंड ब्लॉकचेन इज समथिंग जहाँ पे एक बार कोई डेटा डाल दिया गया, वो चेंज नहीं किया जा सकता। आप उस पे नया डेटा डालोगे दोबारा तो वो आप कर सकते हो, बट वो जो डेटा रहेगा वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप नया डेटा डाल दो, आप एक और नई डिग्री डाल दो आपके नाम से, बट जो पुरानी डिग्री है जहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन आईडी के साथ एक पुरानी डिग्री जो डाल दी गई, अगर आप चाहो कि कल को उस डिग्री में जाके आपके सीजीपीए आपके नंबर्स बढ़ा दे, कोई हैक कर ले ब्लॉकचेन या ऐसा कुछ कर ले, वो पॉसिबिलिटी जीरो है। So this is just one example where all these universities, they are using blockchain technology to give degrees to their students to store certificates and other sort of documents on blockchain technology. Got it. And if we talk about not just colleges, there are a number of other companies as well, banks or government. Government is using blockchain technology to store land record. Why? क्योंकि यार अगर आज एक जमीन है और इफ आई एम गोइंग टू परचेज कोई भी पीस ऑफ अ लैंड किसी भी स्टेट में, एंड आई कैन नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट जो डॉक्यूमेंट होता है लैंड रिकॉर्ड, राइट? लैंड रिकॉर्ड मेरे को पता है, बट आई डोंट नो वो लैंड रिकॉर्ड ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ ब्रोकर, या फिर आई डोंट नो हाउ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लुक्स, राइट? तो कोई भी मेरे को कुछ भी बता सकता है यार दिस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और आई कैन ट्रस्ट दैट पर्सन की ठीक है भाई यही ओनर है जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ और इसी बंदे से जमीन खरीद रहा हूँ, कल को पता चला वो जमीन किसी और की हुई। I guess Kerala, Tamil Nadu, Telangana, I guess Telangana is using blockchain technology to store land record. I'm not sure कि they are using currently, but yeah, I've read something कि they are planning to use या फिर currently they are using. But हाँ, government is going to use blockchain technology to store all these records. अगर एक बार ब्लॉकचेन पे आ गया आपका लैंड रिकॉर्ड, तो आप चाहो उसमें ओनर चेंज कर दो, वैसा तो होगा ही नहीं, राइट? आप चाहो जमीन का साइज कहीं से कहीं बढ़ा दो या कुछ भी कर दो, वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मेरे को आपसे कल को खरीदनी है जमीन, आई कैन सिंपली आस्क फॉर द ट्रांजैक्शन आईडी और मे बी सम आईडी सो दैट आई कैन इजीली चेक दैट डॉक्यूमेंट ऑन ब्लॉकचेन। और अगर मेरे को ब्लॉकचेन पे डॉक्यूमेंट मिल गया, देन आई कैन इजीली ट्रैक ना कि यार ये 10 साल पहले का ब्लॉकचेन पे सेव डॉक्यूमेंट है, और कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है ब्लॉकचेन पे, क्योंकि मेरे को पता है व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन इज। यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस जो ब्लॉकचेन पे एक बार चला गया। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि इस बंदे की जमीन है तो इसी की जमीन। बट फिर आपके मन में आएगा यार अगर मैं जमीन खरीदूंगा तो क्या, आपने तो बताया कि वो लैंड रिकॉर्ड चेंज हो ही नहीं सकता जो ब्लॉकचेन पे चला गया है, तो उसका ओनर बदलेगा कैसे? तो वो जो पुराना वाला है वो वहीं रहेगा ब्लॉकचेन में, एक नया ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा, एक नया डेटा चला जाएगा ब्लॉकचेन कि नाउ दिस इज द सेकंड ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड पीस, और ये रिकॉर्ड है, ये डिटेल्स हैं, इतने का ट्रांजैक्शन हुआ, तो सारी चीजें वहां पे रहेंगी। और उस ब्लॉकचेन पे डाल कौन सकता है? केवल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन डाल सकता है। तो यू कैन ट्रस्ट ना कि भाई मैंने अपने मन से तो लिखा नहीं कि मैंने एक फेक पेपर क्रिएट कर लिया, फेक ओनर बना दिया, फेक साइज लिख दिया, नहीं यार। ब्लॉकचेन पे है तो मतलब गवर्नमेंट ने चेक करा होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होगा वो, या फिर मतलब बहुत सारे चेक्स होंगे जो हुए होंगे तब ब्लॉकचेन पे पड़ा है, राइट? एंड यू कैन दैट पर्टिकुलर थिंग Definitely. Yes. right? So these are the applications जहाँ पे blockchain is going to be used, as well as there are number of other applications जहाँ पे हो रही है। But if I talk about India, तो ये तो बहुत common example है। Healthcare में people are going to use blockchain technology so that they can store your health records blockchain पे और encrypt करके, right? आप if I want to track कि तुम्हारी health पहले से अब तक क्या रही है, तो I can easily go to blockchain और तुम्हारी परमिशन से I can access that particular document और मेरे को दिख जाएगा। तो वहाँ पे यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस कि भाई आपने ब्लड ग्रुप चेंज कर लिया, कुछ चेंज कर लिया चीज की वजह से, कोई रीजन था जहाँ आपको कुछ चीजें छेड़नी थी, कोई मेडिकल रिकॉर्ड चेंज करना था, आपने मान लो लेट्स सपोज यू अप्लाइंग फॉर इंडियन आर्मी और वहाँ पे बोला गया नहीं यार ये बंदा इतना मेडिकली फिट होना चाहिए, बट आपने कुछ ऊपर नीचे कर करके चेंज कर लिया रिकॉर्ड। पर ब्लॉकचेन पे अगर एक बार आपका हेल्थ रिकॉर्ड या फिर आपका बर्थ रिकॉर्ड चला गया, बर्थ रिकॉर्ड में बहुत होता है, राइट? उसमें लोग डेट चेंज कर देते हैं, ईयर चेंज कर देते हैं,
बट एक बार जैसे ही कोई हुआ, कुछ भी हुआ और वो डेटा तुरंत ब्लॉकचेन में चला गया, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो यार, वो डेटा ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है। यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस टू द डेटा. So the most important application of blockchain is going to be storing records, because blockchain is a sort of a database only, where you can store data, where you Right. can put some logic, where you can run logic as well. Hmm. So blockchain, again, number of applications, but अभी जो मैंने बताया, these are few applications which government is using, as well as ये बहुत common applications है जो आने वाले time में you will get to see. Definitely. And you know, this is just the tip of the iceberg, honestly. मतलब जिस Yeah. business के बारे में बात कर रहे हैं ना, the whole iceberg is very deep, right? True. And definitely there will be a lot more that we'll be seeing in terms of the applications that will be prominent enough and जो कि हम real life में देख पाएंगे उस time पे. As far as I understood about blockchain, so decentralization is the most important, you know, characteristic of blockchain, right? Because उसी के basis पे like so many things are possible, right? True. And you gave me a comprehensive overview about smart contracts as well in the previous answers that you just shared, right? So there are, you know, there must be multiple more applications, right, that the companies or the businesses will be, you know, applying apart from you know, finances, right, in terms of their operations, right? So and what is your take on this thing? Well, so companies are mostly using blockchain technology to store their data, their records, their financial records, all of these things. Again, it depends upon company to company, right? Let's suppose you are running one company, which is a podcast company, okay, and you put videos on YouTube. अब आप सोचोगे यार कि आई वॉन्ट टू यूज ब्लॉकचेन इन सम वे, मैं भी ब्लॉकचेन यूज करूंगा, तो ब्लॉकचेन विल नॉट मेक सेंस टू यू, राइट? ब्लॉकचेन यूज करने का आपकी कंपनी के लिए तो देयर इज नो पॉइंट कि आप ब्लॉकचेन यूज करो, क्योंकि आपके लिए अगेन ब्लॉकचेन एक टाइम पे हर कंपनी सोच रही थी कि यार मेरे को भी ब्लॉकचेन यूज करना है क्योंकि बहुत पॉपुलर है, हर जगह पीपल आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट यू कैन नॉट यूज ब्लॉकचेन एवरीवेयर. Right. ब्लॉकचेन मेनली यू कैन यूज इट जहां पे आपके पास ऐसा डेटा है जो आपको बहुत सिक्योर रखना है, और यू कैन पुट इट ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, right? So again, it depends upon company to company. Her company cannot use blockchain to store some sort of a data on blockchain or to write some logic. Again, blockchain is not fast as well. आप चुटकियों में डेटा रिट्रीव कर लेते हो अपने AWS से, बट इफ आई टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, इट टेक्स सम टाइम. अगर आपको ब्लॉकचेन पे कोई डेटा सेव करना है, उसमें एक ट्रांजेक्शन होती है, फिर वो अप्रूव होती है, उसमें टाइम लगता है, 10 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं, बट इट्स नॉट दैट फास्ट. And every time you are writing something on blockchain, it also cost you. ठीक है, आज के टाइम पे if you want to write something, if you want to go to your doc which you have created on Google, and if you want to make any changes to it, you can do it for free. आप फ्री में कर लेते हो ना, जाते हो डॉक्यूमेंट खोलते हो, कुछ भी नया टाइप करते हो, सेव कर देते हो. बट अगर आपने मान लो एक ब्लॉकचेन बना दिया और ब्लॉकचेन पे आप बोलो कि आज से जो भी कोई बंदा डॉक्यूमेंट बनाएगा वो ब्लॉकचेन पे सेव होगा. अब every time you are writing something, you are creating a new transaction on blockchain and you're saving that on blockchain. Every time you're saving something where you are doing some transaction, it will charge you. और वो जो आप पेमेंट करोगे, that can be in the form of cryptocurrency. So again, simple point is you cannot use blockchain everywhere. It depends upon क्यों यूज करना है, क्या यूज केस है, क्या वहाँ ब्लॉकचेन की जरूरत है कि नहीं, और अगर है तो क्यों है, और फिर आप ब्लॉकचेन कैसे यूज करना चाहते हो आप. या अंडरस्टूड. सो मतलब ऐसा भी है कि we know that okay, AI is being applied into all the fields, right? So like, is there any kind of a ecosystem being built for blockchain which is integrated with AI? well, today again AI is what everywhere you can use AI today, right? Right. And blockchain में again ब्लॉकचेन, देखो ब्लॉकचेन में जो आप बहुत सारी चीजें ऊपर से कर रहे हो, राइट? अगर आपको कोई डेटा ब्लॉकचेन में डालना है, ठीक है, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट राइटिंग सम लैंड रिकॉर्ड ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, अब वो लैंड रिकॉर्ड है, अब आपके पास कोई फिजिकल डेटा आया, फिजिकल कॉपी आई, आपने उसको क्या करा, एआई डिटेक्टर आपने लगा रखा है, आपने पीडीएफ अपलोड करा, उस पीडीएफ को रीड कर लिया एआई के थ्रू, उसने देख लिया कि वैल्यूज सही हैं, कहीं भी ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि एडिटेड है, और फिर उसने उन चीजों को चेक करके आगे पास ऑन करा ब्लॉकचेन पे सेव करने के लिए.
तो अगेन इफ आई टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, अगेन ब्लॉकचेन इज कंप्लीटली एक तरफ है और एआई एक तरफ है. एआई आप यूज कर सकते हो, बट एआई जो आप यूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी एप्लीकेशन बनी हुई है वहां पे मेजर रोल प्ले कर रहा है, ना कि ब्लॉकचेन पे. Right. ब्लॉकचेन जो है वो है बना हुआ है, राइट, पब्लिक ब्लॉकचेन्स बनी हुई है. अब वहां पे आप क्या इनपुट दोगे, कैसा लॉजिक लिख रहे हो, वहां पे यू कैन यूज एआई मे बी टू मेक योर लॉजिक बेटर, टू क्या कहते हैं, टू मेक योर इनपुट बेटर, राइट. अगर वहां पे यू कैन डेफिनेटली यूज एआई एज वेल. एंड देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हु आर यूजिंग एआई. ब्लॉकचेन में दे आर यूजिंग एआई, बट अगेन आप देखोगे ना तो सिंपली आपको पता चलेगा कि एआई, you're using AI to create some content. You are using AI. Mainly, we are using AI today to create some content only, right? चैट जीपीटी हो गया या फिर कोई भी आज के टाइम पे जनरेटिव एआई जहाँ भी यूज हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ कंटेंट ओनली. या फिर कहीं पे आपको यू नीड सम आंसर, तो आप वहाँ पे एआई यूज कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू राइट दैट लॉजिक, तो आपने डायरेक्टली एआई एआई बना दिया है जो कि मॉडल उसका आंसर दे दे रहा है. बट वो वही वही इंफॉर्मेशन आप आगे ब्लॉकचेन में पास कर रहे हो ताकि वो सेव हो जाए वहां पे या फिर वो वहां पे लिख जाए, राइट. तो उसके पहले एआई वाला पार्ट है, उसके बाद ब्लॉकचेन है, और ऐसे ही दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग. Definitely. This podcast has been, way more meaningful, right? For the students who are actually interested in learning about blockchain, right? True. मतलब this is a little gold mine because from basics, from zero, मतलब you have delivered what actually blockchain is, right? उसके applications, how to learn blockchain, right? How are the industries applying blockchain in real time basis, right? What is the future perspective of blockchain, right? How will the jobs be transforming in terms of the industry that you're trying to enter, right? Specifically Right. blockchain, right? And we have already covered these topics, right? So I believe only the last component that is left for the podcast is to just guide the students anything that you think would be relevant, right, to talk about at the end of this podcast, right? So that like that thing should come from an experience directly. Yeah. So Well, I can only suggest कि यार try to learn blockchain, because again, if you want to get a good opportunity जहाँ पे you want to make good money as well, so blockchain can be the right feed, and it's very easy to learn as well. Blockchain आज के टाइम पे सीखना is not that tough. एंड सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे लोग जो नहीं करते हैं और जिसकी वजह से मेरे को ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आता है, तो मैं यही बोलूंगा यार, पुट सम मनी इनटू क्रिप्टो करेंसीज, या फिर थोड़ा सा भी पैसा, अगर 100 रुपए भी डाल सकते हो ना जो कि गिर जाए तो बुरा नहीं लगेगा, वो डाल दो. जब आप पैसे डालोगे ना, आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा फीड में, राइट. अगर आपने कुछ पैसा बिटकॉइन, इथेरियम और उसमें डाल दिया, तो आपका दिमाग चलेगा ना यार कि मेरा पैसे के साथ क्या हो रहा है, और फिर आप देखोगे, आप सीखोगे चीजों को. right. और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जितना बड़ा करियर है ना आज के टाइम में, इफ यू वांट टू मेक मनी एज वेल, अभी तक हमने ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का पार्ट कवर करा, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, आज के टाइम में इफ यू वांट टू मेक मनी, तो again, I'm not saying ki you should invest in cryptocurrencies. I'm not a financial advisor here, but I'm just giving my perspective, my experience. Don't take it as a financial advice, but yeah, investing into cryptocurrencies and all these things is risky, but definitely it can give you very good returns. मैंने ऐसे ऐसे टोकन्स देखे हैं जहाँ पे 100 गुना पैसा हुआ है लोगों का, मेरे आंखों के सामने. अभी सुन करके लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ, but I will just tell you a few tokens. VRA is there, Veracity, Telcoin. These are two just examples. You can look to the charts. पिछले बुल रन का, अगर आपने 1 रुपए डाला होता तो वो 200 रुपए होता आपका, और ये भी नहीं 2-3 साल में, केवल 2-3 महीने में. ओके, अगर आपने 1 लाख रुपए बनाया डाला है ना, तो आपका वो 1 लाख रुपए 2 करोड़ हो जाएगा 3-4 महीने में. ये मैं बेस्ट केस सिनेरियोस बता रहा हूँ. ऑन एन एवरेज यू कैन इजीली मेक 10x to 20x on by investing into few cryptocurrencies. Again, if it's legal, again रिस्की है बहुत, बट इट कैन गिव यू गुड रिटर्न्स. तो मैं तो यही बोलूंगा यार, मैंने जो करा, जितना भी आप पैसा गवा सकते हो कि आपका गिर जाए, चोरी हो जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप रोड पे नहीं आ जाओगे, उतना पैसा आप सोच लो कि आपने गिरा दिया और आप उसको इन्वेस्ट कर दो. एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस कि कल को आप बोलो कि यार इस बंदे ने बोला था और मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई. बट हाँ, बिफोर यू पुट योर मनी,
learn what exactly blockchain is, learn how to do transactions on blockchain, how to store it securely, how to use exchanges, what are exchanges, what are tokens, how to figure out which can be a right token for you to invest, all of these things. वो चीजें सीखो और देन पुट योर मनी, इन्वेस्ट समथिंग, उससे आप सीखोगे भी, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, एंड यू कैन बिकम अ गुड ब्लॉकचेन डेवलपर एज वेल. एंड दिस इज माय स्टोरी हाउ आई स्टार्टेड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. क्योंकि मैंने पहले इन्वेस्ट कर रखा था, तभी मेरे को बहुत चीजें पता थी. तो जब बहुत चीजें पता थी तो मेरे को केवल डेवलपमेंट का पार्ट सीखना था. आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप जब पैसा डालोगे ना, आपका खुद ही मन करेगा सीखने का, समझने का कि Right. पैसा कैसे बनाना है. जब आप Hmm. पैसा बनाने के पीछे जाओगे, आप खुद ही बहुत सारी चीजें पढ़ोगे और खुद ही सीख जाओगे. Definitely, definitely. Blockchain development is just one part. You can make ton of money from blockchain. आप imagine भी नहीं कर सकते यार. लोगों ने मैगडी में काम करने वाले लोग आज के टाइम में फरारी और लैम्बो से चल रहे हैं दुबई में, क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे थे. And one last piece of advice right now, if I talk about the current cycle of Bitcoin and cryptocurrency, अभी सारी चीजें बहुत बॉटम पे हैं. You are going to witness a bull run in upcoming next few months, जहाँ पे आपको चीजें 10x 20x अपनी आंखों के सामने दिखेंगी. And if you are not going to invest today into cryptocurrencies, मैं केवल एक चीज बोलूंगा, go to coinmarket.com. वहां पे आप टॉप 10 या 20 या 50 टोकन्स आप जो देखोगे, उनके बस ना टोकन का नाम लिख लो एक नोटबुक पे, और उनका आज करंट प्राइस लिख के रख लो. ठीक है, आज उस टोकन का नाम और उसका करंट प्राइस क्या है वो लिख के रख लो. और सेम वेबसाइट देखना आज के 6 महीने बाद, आपको मल्टीपल टोकन्स में 10x दिखेगा, 5x दिखेगा, 20x और 50x तक दिखेगा. तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैं पैसा डालता तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता. बट अगेन, मेरे को पता है, मैंने भी ये चीजें मानी नहीं थी, बट एवरीथिंग इज देयर ऑन इंटरनेट. मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पे विश्वास मत करो, सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है. जस्ट चेक इंटरनेट, check CoinMarketCap, check all these websites, and you can easily get all these information out of it. Hmm. Yeah. And like this is a gem, literally. This recommendation is a gem, honestly. Matlab, if students utilize this recommendation in the right way, so Yeah. like there is a lot to recover from the industry before True. even entering it. Before even Right. entering. Yeah, Right. same. Like I've invested few lakhs and I made अच्छा खासा रिटर्न, बट मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने सब गवा दिया. गवा और दिया. मैं बता रहा हूँ, तब रिसोर्सेज नहीं थे, और अभी बहुत हैं. हाँ. And if you want me to help you, you can also contact me on LinkedIn. I can help you with something. Blockchain के Right. बारे में समझ में आ रहा है. But हाँ, Right. honestly, please चीजों को मिस आउट मत करो, बिकॉज राइट टाइम पे राइट जगह होने में और राइट अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में ही यू कैन इजीली गेट सक्सेसफुल. राइट, अगर लेट हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा. आज जो हम स्टोरी सुनते हैं ना, ग्रेटर नोएडा में प्लॉट ले लिया होता तो आज कितने पैसे होते हैं. आज वही टाइम है जब बिटकॉइन ले लिया होगा ना, तो आज के 10 साल बाद. एंड आई कैन say this on your podcast today कि basically today the price of Bitcoin is $60,000 US, 61 to 62,000. It is almost 50 to 55 lakhs or 50 lakhs somewhere around it in Indian rupees. आज 50 लाख है. आज के 10 साल बाद ये 50 लाख easily 5 करोड़ होगा, और आज के कुछ महीने बाद ये 50 लाख 80 लाख भी हो सकते हैं और 1 करोड़ भी हो सकते हैं. तो कुछ महीने से ज्यादा अगर मैं 10 साल की पिक्चर दूं तो ये 50 लाख 5 करोड़ से 10 करोड़ तो जा ही रहा है, कोई डाउट नहीं है. आप अगर पढ़ोगे, यूएस को देखोगे कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, कितना अपना उन्होंने जितनी भी होल्डिंग है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिटकॉइन, आपको समझ में आएगा कि ये चीज कहाँ जाने वाली है आने वाले टाइम में. अभी भी लोगों को पता नहीं है, लोग पीछे रह जाएंगे, फिर बोलेंगे यार कि यार पता नहीं था, कर या लिया होता. हो गई, वो ले लिया होता, या फिर जो भी बहुत सारी रीजंस होंगे. बट हाँ, चीजें पता होंगी तो यू कैन इजीली रिटायर योरसेल्फ इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स. Yeah. Like this podcast has literally been a gold mine for the students, right? And I believe the people who have watched this video till this point have gained a lot of value directly, right? True. And like I literally want to thank you, sir, for contributing so much
so much for this podcast, right? You have invested so much of your time and shared so many, valuable insights for the students. And this is, I believe, one of the best podcasts related to blockchain that is on the YouTube right now, that will be posted on YouTube, right? So like, this is all from our side, right? I hope you got a crisp overview about blockchain, right? And that too, now whatever points you have noted down, just do your own research, right? Do your own research, then only move further with it, right? Because we can just share information. Applying it is your thing, right? It is totally your thing. If you don't want to utilize it, that too is your decision, right? But the thing is that you shouldn't regret your decision after some time, right? Because if you don't apply these like the pointers that sir has mentioned, so it is your call totally, right? We can only recommend you things, right? So this is all from our side. Thank you, people. Thank you for watching. Thank Yes, you for being with us. thank you so much for inviting me to this podcast. And I will just say that what you guys are doing for college students and what value you are bringing for these college people, right? This is something actually very good. And keep doing all these podcasts with more people, and maybe in this way you can give more value to all these college students, right? So yeah, Definitely. thank you so much again for inviting me for this podcast. Thank you, sir, for being here. Thank you for being with us, because it is an honor for me to have you here on the podcast, right? And yeah, this is all from our side. Bye bye. Just take care of yourself. Bye guys.